But I think God, like Moses, the Lord. Hello, everyone. Welcome to this special episode of Angel TV. नमस्कार, एंजल टीवी के इस खास सत्र में आप सबका स्वागत करते हैं। My name is Stephen Powell. I have a ministry called Lion of Light Ministries. मेरा नाम स्टीवन पॉल है। हमारे में सेविकाई का नाम लाइन ऑफ लाइट। We've been teaching now for several weeks on a very important subject that I call the spirit and power of Elijah. पिछले कुछ हफ्तों से हम एक महत्वपूर्ण शीर्षक हम आपको सिखाते आ रहे हैं जिसका नाम है आत्मा और सामत एलिया का। The Bible is clear. बाइबल बहुत स्पष्ट है। Jesus has promised that he's coming again. यीशु ने वायदा किया है कि वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। He will come in great power and great glory. बड़े सामत के साथ, महिमा के साथ वापस आने वाले हैं। He will also come to judge and to cleanse the earth. और वो न्याय करने और इस पृथ्वी को साफ करने आ रहे हैं। But before this happens, he promised that he would send forth prophetic messengers. ये होने से पहले उन्होंने वायदा किया है कि भविष्यवाणी की संदेशवाहकों को वो भेजेंगे। Just like John the Baptist came before his first coming. उनके पहले आगमन से पहले जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था वैसा ही Prepared the way of the Lord. कि परमेश्वर के लिए राह को तैयार कर सकें, So will there be prophetic messengers that God raises up today to forerun the second coming of the Lord. और इसी वजह से परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को जो संदेशवाहक के समान संदेशों को ले जाकर राह को तैयार करने वालों को खड़ा कर रहा है। The Bible identifies a specific anointing that John the Baptist came in. और परमेश्वर की वचन बताता है कि नियुक्त तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक अभिषेक के साथ आए थे। Luke chapter 1 verse 17 tells us that he came in the spirit and power of Elijah. लूका पहला अध्याय के 17 पद कहता है कि वो सामर्थ और अभिषेक एलिया के साथ वो आए थे। Jesus said that Elijah is yet to come and that Elijah had already come. यीशु ने कहा एलिया अभी आने पर है और एलिया आ भी चुका है। The disciples knew that he referred to John the Baptist. चेले ने पहचान लिया वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात कर रहे हैं। But Jesus said as Elijah had come, he was still yet to come as well. और यीशु ने कहा एलिया तो आ चुका है और आने पर भी है। The Elijah anointing is still very much at work today in the earth. एलिया की अभिषेक आज बहुतायत से कार्यशील है पृथ्वी पर। It's an anointing of power and glory. महिमा और सामर्थ के साथ का एक अभिषेक है। It's anointing that helps to prepare the way of the Lord. एक ऐसा अभिषेक परमेश्वर के लिए राह को तैयार करता है। It's also an anointing that comes on prophetic messengers to confront false prophets. और ये ऐसा अभिषेक भी है भविष्यवाणी के संदेशवाहकों को तैयार करता है कि झूठी शिक्षाओं के विरोध में साहसपूर्वक खड़े हो सकें। It confronts false doctrine and erroneous teaching. गलत शिक्षाएं और परमेश्वर के वचन से भटकाने वाले संदेशों से उन्हें सुरक्षित रखता है। The spirit and power of Elijah confronts doctrines of demons. आत्मा और सामर्थ एलिया का दुष्ट आत्माओं के सिद्धांतों का विरोध करता है। It also confronts sin. पाप का भी वो विरोध करता है। This is still very much needed today. आज के लिए बहुत ही जरूरतमंद है। Just like it was in Elijah's day when he came. जैसे एलिया के दिनों में जब वो आया था वैसा ही आज भी। Recently, a man of God named Rick Joyner, हाल ही में एक प्रभु का दास का नाम रिक जॉयनर, he wrote in a book called The Path some recent visitations that he'd had from the prophet Elijah. उन्होंने एक पुस्तक लिखा था द पैथ्स करके जिसमें एलिया के साथ उनकी जो भेंट हुई उस विषय के दर्शनों को लिख रखे हैं। Elijah asked him a series of questions. एलिया ने लगातार की सवाल उनसे किया। He said, "Where are the apostles and where are the prophets today इन दिनों में प्रेरित लोग कहाँ हैं, भविष्यवक्ता लोग कहाँ हैं that will confront the false prophets and the false apostles today like I did in my day?" झूठी भविष्यवक्ताओं को, झूठी प्रेरितों का विरोध कर सके, सामना कर सके जैसे मैं अपने दिनों में किया था। The Lord is asking that question. यही सवाल परमेश्वर कर रहे हैं। Where are the men and women who are going to have the same courage that Elijah did in his day? कहाँ है वो स्त्री या पुरुष जो उनके पास यही साहस हो जो एलिया के अंदर था। During Elijah's time,
Ahab and Jezebel took power. एलिया के समय पर आहाब और जezebel अपने सामत को पाए। As we've discussed in previous episodes, Ahab may have been the king, but Jezebel was the real power fueling the agenda. हो सकता है कि आहाब एक राजा हो सकता है, मगर उनके पीछे से, उनके अंदर से स्रोत देने वाली, सामर्थ देने वाली वो जेजेबेल थी। She was a Phoenician princess that had been brought in to marry the king. वो फिनिशिया की राजकुमारी थी जो विवाह करके इस्राएल में आई। But she brought in all her gods and all her paganism. अपनी सारी देवी देवताओं को, मूर्तियों को इस देश में ले आई। One of the chief gods of the Canaanite people at that time was Baal. उन समय की प्रमुख एक देवता था जिसका नाम बाल है। Baal was a god of many things, but one of the things he was a god of fertility. कई वजह से उसे माना करते थे, मगर महत्वपूर्ण वजह इसलिए था कि वो कुशलता लाता है। Baal was a god of fruitfulness, a god of increase. बाल देवता जो फसल ले आने वाला या फल ले आने वाला है। So she convinced the nation somehow that in giving themselves over to Baal, the nation could increase. उसने इस तरीके से लोगों को बहका के रखी थी, अगर अपने आप को बाल के लिए समर्पित करेंगे तो आप उन्नति पाएंगे। So there's a materialism that comes when Baal creeps in. जैसे बाल अंदर आया, लोगों के अंदर भौतिक विषयों के ध्यान और बढ़ने लग गया। There's even an economic system of certain prosperity that comes with that spirit. इस आत्मा के साथ आर्थिक विषय या धन के विषय पर आत्माएं क्रिया करने लगती हैं। There was also a lot of child sacrifice that came with Baal worship. बाल की आराधना के साथ साथ बच्चों का बलिदान देना आया था। This can be likened today to the increase of abortion around the world. आज इस प्रकार की हम देख सकते हैं जैसे बहुत सारे गर्भपात किया जा रहा पूरे संसार भर में। But this was the climate that Elijah the prophet was raised up in 1 Kings 17. ये तभी समाप्ति होने पाया जब परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता को खड़ा किया। पहला राजा 17 अध्याय में देखते हैं। It was a day of apostasy. लोग पीछे हट रहे थे, विश्वास से पीछे जा रहे थे। It was a day of wickedness. दुष्टता के दिन था वो। It was a day when people weren't just turning from Jehovah to worship Baal. और सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि वे यहोवा को छोड़कर बाल की आराधना कर रहे हैं, But there was a mixture of Baal worship and worship of Jehovah. और मगर उसमें एक मिलावट थी, जैसे यहोवा का भी और बाल का भी वो आराधना करते थे। That's likened unto today of people just playing church and getting religion versus giving their whole lives to God. ठीक आज के ज़माने के जैसे लोग कलीसिया में जाते हैं एक धर्म के अनुसार अपने धार्मिक कार्य को निभाने, ना कि परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करने के लिए। The Bible says, "You will have no other gods before me," says the Lord. परमेश्वर कहता है कि मेरे छोड़ कोई और परमेश्वर तुम्हारे ना हो। The Bible says to come out of Babylon. परमेश्वर कहता है बाबिलोन से बाहर निकल के आओ। The Bible says, "Be separate, be clean," says the Lord. यहोवा परमेश्वर कहता है कि अपने आप को अलग कर लो, अपने आप को शुद्ध रखो। There's to be no mixture. कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। The Lord is looking for a pure, spotless bride. परमेश्वर बिना दाग, बिना कलंक ऐसे दुल्हन की खोज में है। Elijah the prophet had this burning in his heart. एलिया भविष्यवक्ता के अंदर ये बातें बहुत ही ऐसी जलती हुई थी। No mixture. कोई मिलावट नहीं। The Bible says in 1 Kings 17:1 पहला राजा 17 अध्याय के पहला पद कहता है that Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, "As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall be no dew nor rain these years except at my word." इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। Verse 2 Then the word of the Lord came to him saying, दूसरा पद, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, "Get away from here and turn eastward. यहाँ से चलकर पूरब की ओर जा Hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan." और किरात नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में से है छिप जा। So, Cherith in the Hebrew
means a cutting away. खिरात का मतलब हिब्रानी भाषा में कि काट कर अलग कर देना। The River Jordan is a place of death. यर्दन का नदी वहाँ मृत्यु का स्थान है। That's even where John the Baptist baptized people. और यहीं पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे। The baptism of repentance मन फिराव की बपतिस्मा दे रहे थे represents of dying to self. कि अपने स्वार्थ के लिए मरने को दर्शाता है। So, by the nature of the prophetic word that God will release through an Elijah messenger, उस स्वभाव के अनुसार जो संदेश परमेश्वर ने दिया है, जो एलिया संदेश वाहकों के लिए, it brings a greater level of death. वो एक बड़े पैमाने में मृत्यु को ले आता है। It brings a cutting away, और ये ऐसे समय ले आता है काट के दूर करने की, a separation, a sanctifying. अलग कर देना और या शुद्ध कर देना। The Elijah messenger must submit to this. एलिया संदेश वाहक इसके लिए समर्पित होना जरूरी है। Now, even though Elijah came and stood before Ahab, यहाँ तक कि एलिया आहाब के सामने खड़ा हुआ, he noted here that he stood before God. उसने यहाँ पे ध्यान दिया कि कहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ। He said, as the Lord God of Israel lives, कहा कि इस्राएल का परमेश्वर जीवित है, before whom I stand. जिसके उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूँ। I think it's interesting that he says the Lord God of Israel lives. ये बहुत ही दिलचस्प है ये देखना कि इस्राएल का यहोवा परमेश्वर जीवित है। Maybe the Lord was silent for a period of time during Israel's apostasy. जब इस्राएल अपने विश्वास से भटक चुके थे तो हो सकता परमेश्वर थोड़े दिन के लिए शांत रहा हो। Maybe he became quiet. हो सकता है वो अपने आप में चुप हो गए हों। Maybe he let them think that they could get away with their sin and rebellion. वो अनुमति दिया कि ताकि वो सोचने पाए कि अपने ये बरवाने वाली बातों से, अपने पापों से वो अपने कार्य को निपटा सकते हैं। Maybe after a little bit of time went by that Israel was now involved in deep Baal worship. ऐसे थोड़े समय व्यतीत होते ही इस्राएल अभी बहुत गहरी रीति से बाल की आराधना में शामिल थे। Maybe they thought to themselves, God must be dead because there's no consequences for what we're doing. हो सकता है कि उन्होंने इस प्रकार सोचा होगा कि हमारा परमेश्वर मर गया होगा क्योंकि ऐसा कार्य करने के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। It's like this in many nations of the earth today. एक ऐसा ही परिस्थिति आज कई देशों में इस पृथ्वी पर, It's like this in my nation, America. ऐसा ही हमारे देश अमेरिका में भी है। They're saying, where is the God of Israel? ये कहते हैं कि इस्राएल का परमेश्वर कहाँ है, Where is the God of the Christians? मसीहों का परमेश्वर कहाँ है। It's been a lot of years since my nation, America, has had a sweeping move of God. ये बहुत साल हो चुका है कि परमेश्वर की ऐसे एक बहाव जो चीजों को साफ करके चले जाए, That shook the whole nation. जो पूरी देश को हिला दे। It's been a lot of years since my nation has had a true cultural awakening unto Jesus. बहुत साल हो चुका है कि हमारे देश में अभी तक पूरी संस्कृति रीति से लोगों ने परमेश्वर के लिए प्रत्युत्तर नहीं दिए हैं। But God is not dead. परमेश्वर मरा नहीं है। And do not be fooled. आप धोखे मत खाइए। Just because things seem quiet, जबकि वो शांत है, just because God seems like he's being silent at times, कई बार ऐसे लगता है कि परमेश्वर थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, God is not dead. परमेश्वर मरे नहीं हैं। And certain nations cannot keep going the way that they go in sin and rebellion without consequences. जैसे कई देश अभी जो चल रहा है अपने पाप में, अपने सारे अधर्मों में, उसके परिणाम के बिना ऐसे ही नहीं रह जाएंगे। But Elijah said, this God who lives, एलिया ने कहा ये यहोवा परमेश्वर जीवित है this is the one that I've been standing before. और इसी की उपस्थिति में मैं खड़ा रहता हूँ। Elijah said, I've been standing in his counsel. एलिया कहता है कि मैं उसके सलाह और वचन के सामने खड़ा रहता हूँ। And then he spoke forth from the counsel of God. परमेश्वर का दिया हुआ उस वचन से वो बात किया, And he shut up the heavens, वो स्वर्ग को बंद कर दिया, that it would not rain on the earth a space of 3 years except at his word. जब तक एलिया ना कहे तब तक यहाँ पर कोई बरसात नहीं होगा करके उसे बंद कर दिया। Wow, Ahab may have been the king. हो सकता आहाब एक राजा हो, Ahab may have had the political power, हो सकता है आहाब के पास राजनीतिक सामर्थ हो, but Elijah had power with God. मगर एलिया के पास परमेश्वर का सामर्थ है।
Jesus is the King of Kings. He's the Lord of Lords. यीशु ही राजाओं का राजा, परमेश्वर का परमेश्वर है। God is looking to release such messengers of power and authority in the earth today. आज इस पृथ्वी पे परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि ऐसे भविष्यवक्ताओं को, ऐसे संदेशवाहकों को आजाद करने की। It's the mantle of Enoch. It's the mantle of Moses. ये हनोक की चद्दर है, मूसा की चद्दर है, It's the mantle that Elijah wore. और यही चद्दर जो एलिया ने पहन रखा था। It's the mantle of the Melchizedek priesthood. मेल्किजेदेक याजकपन का एक ही चद्दर है। The Bible says that Melchizedek was the priest of the Most High God, बाइबल बताता है मेल्किजेदेक परमेश्वर का महायाजक था, but he was also king of Salem. और वो सालेम का राजा भी था। Salem means peace in Hebrew. सालेम का मतलब है शांति हो इब्रानी भाषा में, This is the title of the Lord Jesus Christ. और यही नाम है प्रभु यीशु मसीहा का। Jesus is the Prince of Peace. यीशु ही शांति का राजकुमार है, He's the King of Salem. वो सालेम का राजा है। But this represents a new order of authority that will sweep the earth. और ये दर्शाता है कि नए तरीका जो पूरी पृथ्वी को ऊपर चलने वाला है। It will not just be a priestly order with priestly authority. ये सिर्फ एक याजकपन के तरीके नहीं जो याजक के अधिकार के साथ आए। It's not just an anointing that operates in the church, that operates in a religious community. एक ऐसा अभिषेक नहीं जो कलीसिया में, कलीसिया के धार्मिक तरीकों में कार्य करता हो, But it brings a kingly anointing. मगर एक राजकीय अभिषेक को ले आता है। It brings a governmental anointing. एक सरकारी अधिकारी को परमेश्वर ले आता है। But this is not a governmental anointing that comes from the governmental systems of the earth. ये ऐसे सरकारी अधिकारी जो पृथ्वी के सरकार के अनुसार आता है वैसा नहीं है। Elijah the prophet was not elected by a democratic body. एलिया भविष्यवक्ता को जनतंत्र के अनुसार चुना नहीं गया है। Elijah the prophet was not a part of a natural royal bloodline like Ahab was. एलिया भविष्यवक्ता जैसे आहाब एक राजकीय परिवार में से आया है, ऐसे राजकीय परिवार से नहीं आया है, But he was an authorized representative of the kingdom of heaven. मगर वो अधिकार पाया हुआ स्वर्ग राज्य का एक प्रतिनिधि समान है। God's authority is not limited to the rule of man. परमेश्वर की अधिकार मनुष्य के शासन के अधीन में नहीं है। God's authority extends over all of creation. परमेश्वर की अधिकार सारे सृष्टि से परे हैं। Elijah the prophet demonstrated a greater authority than what Ahab operated in. एलिया ने एक ऐसे अधिकार को करके दिखाया जो आहाब के पास था उससे बढ़कर। He took out the key that God gave him and locked up the heavens. वो कुंजी जो परमेश्वर के पास था उसने लिया और स्वर्ग को बंद कर दिया। Elijah stopped the rains from coming for 3 years. एलिया ने 3 साल तक बरसात होने से रोक दिया। I see prophets like this arising today. इस प्रकार की भविष्यवक्ताएं आज उठता हुआ मैं देख पा रहा हूं। They will even confront governments on the earth, इस पृथ्वी का सरकार का भी वो सामना करते हैं, like Elijah confronted Ahab, जैसे एलिया ने आहाब का सामना किया, like Elijah confronted Jezebel, जैसे कि एलिया ने जेजबेल से सामना किया, like John the Baptist confronted Herod. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोद के सामना किया। They will confront वे उनका सामना करेंगे and they will call the nation and the government to heaven's accountability. वे सारे जातियों को और सारे सरकारों को परमेश्वर की ओर उनके जिम्मेदार ठहराएंगे। They will not merely come with words, वे सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं आएंगे, persuasive words of human wisdom. जो मनुष्य के ज्ञान के अनुसार कार्य करने वाली एक वचन से नहीं। They won't just come quoting Bible verses at kings and presidents. वे सिर्फ आते हुए परमेश्वर की वचनों को बताने के लिए नहीं, राजाओं को, राष्ट्रपिताओं को। They will come with real power. वे सच्चे सामर्थ के साथ आएंगे। They will come with a demonstration of the Spirit of God and power. परमेश्वर की आत्मा को कार्य स्वरूप दिखाते हुए सामर्थ के साथ आएंगे। They will walk in the glory realm वो महिमा के श्रेणी में चलेंगे before God. परमेश्वर के सामने। They'll demonstrate the authority of heaven.
स्वर्ग की अधिकार को करके निभाएंगे, even authority over creation itself. यहाँ तक कि सृष्टि के ऊपर भी अपने अधिकार को दिखाएंगे। Remember, Baal was regarded as a god of fertility, याद होगा, बाल को है कुशल का देवता कहते हैं, a god of fruitfulness. फल देने वाला एक देवता है। In this farming culture, the rain was needed to have fruitfulness in the land. ऐसे संस्कृति जहाँ खेती बाड़ी और किसानी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ के लिए बारिश बहुत ही जरूरत है। So what did Elijah do? तो एलिया ने क्या किया? When he shut up the heavens that it would not rain, जब उसने आसमानों को बंद कर दिया ताकि वो बरसात ना बरसाने पाए, he showed a power greater than Baal. और उसने दिखाया एक ऐसे सामर्थ है बाल से भी बढ़कर है। He said, truly it is the Lord your God, Israel, और कहा कि सचमुच आपके परमेश्वर जो इस्राएल का है, that can either give the rains or withhold them. वही खुद बारिश को बरसा सकता है और उसे रोक भी सकते हैं। This is incredible. ये बहुत ही अद्भुत है। The world needs to hear this word again today. आज फिर से संसार को सुनना जरूरी है। Even nations, even kings, even presidents. यहाँ तक कि सारे जातियां, सारे देशवासी, सारे राजाएं, That if you seek the Lord will bless you. अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। A nation that calls upon the name of the Lord shall be lifted up in God's eyes. जो देश परमेश्वर के नाम को पुकारता वो परमेश्वर के नजरों में उठाया जाएगा। But the nations that rebel will be torn down in his sight. और वो देश जिसके विरोध में बलवा करता है वो परमेश्वर के सामने गिराए जाएंगे। Elijah demonstrated this power. एलिया ने इस सामर्थ को करके दिखाया है। But notice how immediately after giving this word, ध्यान दीजिए, तुरंत जैसे इन वचनों को कहने के बाद he goes into the wilderness and has to get his food by the ravens sending him bread. उसे निर्जल स्थानों में जाना पड़ा कि वो परमेश्वर उसके लिए कौवों को भेजना पड़ा ताकि उसे खिला सके। He's fed supernaturally through the widow whose oil does not run dry. अलौकिक रीति से उसके लिए भोजन प्रबंध हुआ उस विधवा के द्वारा जिसकी तेल और उसकी आटा खत्म नहीं हुआ। This represents the price that Elijah messengers have to pay. ये वो दर्शाता कि वो कीमत जो एलिया संदेशवाहकों को देना पड़ता है। They have to depend completely on God for their every need. अपनी हर जरूरतों के लिए पूर्ण रीति से यहोवा परमेश्वर पर ही निर्भर होना पड़ता है। But as they're faithful to the word, God promises that he will meet their every need. जैसे वो उसके वचन के लिए आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर वायदा करता है उनकी जरूरतों को वो पूरा निभाएंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this word today. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। Lord, we pray that you would raise up servants in your church today that have the same courage and boldness that Elijah did. हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा एलिया के पास जो साहस और सामर्थ्य था वैसा ही आज इन लोगों के बीच में होने पाए। Lord, we pray that by your grace you would enable us to stand in your counsel. प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह दे जिसके द्वारा हम आपके वचन में स्थिर रहने पाए। To hear your words, Lord, and to Ki- be your voice in the earth. कि इस पृथ्वी से हम आपकी आवाज को सुने, आपके वचनों को हम ग्रहण करने पाए। And Lord, we thank you that as we faithfully release your word, प्रभु, जैसे विश्वास योग्य होकर आपके वचन को हम आजाद करते हैं, that as you did for Elijah, you'll do for us. जैसे आपने एलिया के लिए किया है वैसा ही हमारे लिए भी करेंगे। You will meet our every need. हमारी हर जरूरतों को आप पूरा करेंगे। You will meet the needs of our families. हमारे परिवार की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। You are our Jehovah Jireh. आप हमारे यहोवा ईरे हैं। You are the Lord our provider. आप हमारा परमेश्वर प्रबंधक हैं। We trust in you, Lord. हम आप पे भरोसा करते प्रभु। We thank you for taking care of us. हमारा ध्यान रखने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। I want to thank you for joining me for this special episode today here on Angel TV. एंजल टीवी के इस खास सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। Please send me your prayer requests, your comments, any questions you may have about the teachings. दया करके अगर आपका कोई विचार हो या आपके संदेह हो इस शिक्षा के प्रति या आपकी प्रार्थना के निवेदन हो, भेजिए। You can reach out to me through my website or send me an email. आप हमारे वेबसाइट में हमारे से संपर्क कर सकते हैं या अपने ईमेल भेज सकते हैं। Follow me on Facebook, on Instagram, on my other social media outlets. फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई और अन्य तरीके जो हमारे सोशल मीडिया का है उसके द्वारा हमसे संपर्क करिए। We always love to hear from you. हर वक्त पसंद करते हैं आपसे सुनने के लिए। God bless you. We'll see you next week.
परमेश्वर आपको आशीष दें। अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।